ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਚੌਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਲਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ 2 ਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਗਰ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ EMF ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ठीक। और ये जो वायर्स है असी पूरा सर्किट नहीं बना रहे, असी सिंपल कह रहे हैं कि कुछ किसी भी सर्किट के अंदर किसी वायर दी थ्रू करंट जिहड़ा है इस पॉइंट तक एंटर कर रहा है या किसी असी वायर दी हेल्प दे नाल करंट कह रहे हैं लीव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह I3 सपोज कुछ एंटर करवा रहे हैं, कुछ असी लीव करवा रहे हैं, ठीक। और ये पॉइंट का मतलब असी की कह रहे हैं, अगर सर्किट 'च देखिए तो मान लो अगर असी एक सिंपल जा सर्किट ड्रॉ किया, उहदे 'च असी एक बैटरी लगाती, एक रजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल इस तरह जाएगा, ठीक। हुण ये जिहड़ा ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। सपोज़ अगर मैं ए वाला पॉइंट कहाँ, क्योंकि 4 पॉइंट है ना ABCD, सपोज़ ए वाला मीटिंग पॉइंट मैं कंसिडर किया इस सर्किट से। हुण इस सर्किट तो ए वाला करंट आई करंट की कर रहा है, एरो की दस रहा है, करंट की कर रहा है लीव कर रहा है। इस तरह के होर भी अगर सर्किट्स असी बनाने ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ, इस सर्किट 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ठीक है। और कॉमन पॉइंट कोई भी कंसिडर कर लिए, चाहे ए पॉइंट तो ये वाला करंट असी देखांगे की कर रहा है, लीव कर रहा है इनू, ठीक है। और इत्थे जे ए वाले करंट की गल करिए, ए वाला करंट जिहड़ा है इस पॉइंट ते एंटर करेगा I1 प्लस I2। तो इस तरह असी कहांगे कि किसी भी सर्किट के अंदर कोई मीटिंग पॉइंट अगर असी कंसिडर करते हैं तो उस मीटिंग पॉइंट तो कुछ करंट लीव करेंगे और कुछ करंट असी बोलांगे एंटर करेंगे, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक। ਹੁਣ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਮ ਆਫ ਕਰੰਟਸ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚ, ਉਹ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ रूल असी याद रखना है, साइन कन्वेंशन कह सकते हैं, चाहे असी ਇਹਨੂੰ साइन कन्वेंशन ਦੇ अकॉर्डिंग, कन्वेंशनस ਦੇ अकॉर्डिंगली की है कि अगर करंट फ्लो जो कर रहा है किसी कंडक्टर कह दिए या वायर 'ਚ टूवर्ड्स दी जंक्शन है, अगर करंट की है टूवर्ड्स दी जंक्शन है तो ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। अगर अवे फ्रॉम दी जंक्शन है तो उन्होंने असी की कंसिडर करना है, उन्होंने असी हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है। ये जो है असी साइन कन्वेंशनस याद रखने हैं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर 'ਚ, अगर तो जंक्शन की तरफ है तो उन्होंने पॉजिटिव कंसिडर करो, अगर अवे है तो असी उन्होंने की कंसिडर करांगे, नेगेटिव कंसिडर करांगे, ठीक है। हुण इत्थे चाहे देख लीए असी, हुण जो एंटर कर रहा है टूवर्ड्स दी जंक्शन है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो अवे फ्रॉम दी जंक्शन है उन्होंने असी की कंसिडर करांगे, उन्होंने असी
ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ, ਔਰ ਜੋ ਲੀव ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ दैट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक, फिर जो लीव कर रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव, जो एंटर कर रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और दिस इज़ इक्वल्स टू 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ I1 ਚੋਂ I2 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ जो I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫॉर्म 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है, इस फॉर्म च क्यों लिख रहे हैं असी, क्योंकि असी सम की गल कीते। बस ध्यान की रखना है साइन कन्वेंशनस के अकॉर्डिंगली जेड़ा करंट एंटर कर रहा है सर्किट च उन्होंने पॉजिटिव कंसिडर कर लो, जो लीव कर रहा है उन्होंने उहदे अगे की लगाना है, नेगेटिव लगाना है। और इनू सॉल्व करन तो बाद असी इसे जो ऊपर लिखा है उत्थे ही पहुँचांगे, पर जर्नली असी इनू इस तरह लिखना है। ये हो गया साडे कोल किरचॉफ फर्स्ट लॉ। हुण की है साडे कोल किरचॉफ सैकेंड लॉ। किरचॉफ सैकेंड लॉ दे अंदर असी की करना है, सब तो पहला कंडीशन है सर्किट की होना चाहिए है, क्लोज्ड होना चाहिए है। इहदे च असी की है EMFs दे सम दी गल करांगे, सम ऑफ EMF दा सम जिहड़ा है असी कादे बराबर लिखना है, एल्जेब्रिक सम्स। मतलब लैफ्ट हैंड साइड ते असी किन्हां नूं ऐड करना है, EMFs नूं। सपोज किसी सर्किट च मेरे कोल E1 E2 E3 इस तरह सारियां EMF है, तो लैफ्ट साइड ते असी सारियां EMFs नूं ऐड करना है, सो ऑन जिन्नियां भी है किसी सर्किट च। राइट हैंड साइड ते असी की करना है, सम लैके चलना है कादा, प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टेंसिस एंड करंट्स। सपोज सर्किट च I1 करंट फ्लो कर रहा है, रजिस्टेंस है एक R1, I2 करंट भी फ्लो कर रहा है, रजिस्टेंस है R2, I3 करंट है, रजिस्टेंस है R3। ठीक है, तो असी की करांगे, ये अंदर असी बोलांगे कि सम लेना है, असी की करना है, एडिशन ही करनी है, पर कादी एडिशन करनी है, प्रोडक्ट ऑफ कादा प्रोडक्ट, रजिस्टेंस एंड करंट। पहले असी कहांगे I1 R1 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टेंस, फिर प्रोडक्ट ऑफ करंट I2 रजिस्टेंस R2, प्रोडक्ट ऑफ करंट I3 रजिस्टेंस R3, पर है सारियां दा की है, सम। कादा सम है, असी की कहांगे एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs थ्रू एनी सर्किट इज़ इक्वल टू नुमेरिकली कादे बराबर है, एडिशन या सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ कादा सम है। पहला की किता, मल्टीप्लाई किया करंट ते रजिस्टेंस नू, फिर दूसरे करंट ते रजिस्टेंस नू मल्टीप्लाई किया, सब नू मल्टीप्लाई करन तो बाद ऐड किया, तो असी की कहांगे एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टेंसेस फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट। ठीक है, तो असी की कहांगे कि साडे कोल की आंसर आ जाएगा, की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ, एक गल ध्यान रखनी है, जो भी सर्किट है वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए है। क्लोज्ड पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs कादे बराबर है, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टेंसेस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू दैम। और इनू असी लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, लूप रूल। इस तरह जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सीगा इनू असी जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हुण सैकेंड लॉ नू असी अगर डायग्राम की हैल्प नाल समझते हैं तो ये डायग्राम की होएगी साडे कोल, सपोज साडे कोल कोई भी एक सर्किट है, उहदे च असी 4 रजिस्टेंसेस कनैक्ट करके चल रहे हैं। सपोज एक सैल असी इत्थे कनैक्ट करता। ठीक, इस तरह असी
ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 3 ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈੱਲਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਸੈੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ E1 ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ E2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ R1 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ योर R3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ R4 R5 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ E1 ਜੋ EMF ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਹੈ I1, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਸਪੋਜ਼ I4 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ। ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ I5। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ I3 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ I2। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। 2 ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ R1 R2 R3 R4 R5। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ I1 ਕਰੰਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ I4, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ I5 ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਿਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾਈਏ ਕਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਈਏ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, positive, ठीक। The current flowing in anti-clockwise direction is taken as positive, while if current flows in this direction, that is clockwise direction, then it is always considered negative। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਾ EMF ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ EMF ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई सेल सर्किट च करंट नू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च सेंड करेगा तो उस EMF दे अगे लगेगा पॉजिटिव, ठीक। अगर कोई EMF सर्किट च करंट क्लॉकवाइज डायरेक्ट, क्योंकि करंट देखो किहदे कारण है, बैटरी दे कारण है। अगर बैटरी ना हुंदी तो करंट नहीं सी होना, तो असी कहांगे करंट कौन सेंड कर रहा है, बैटरी या EMF। अगर बैटरी या EMF या असी सैल बोल दईए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन च सेंड कर देगा, तो उहदे अगे उस EMF ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। दोनों चीज़ा करंट दे केस च भी है और EMF दे केस च भी है। EMF of the cell is taken as positive if it sends current in the circuit in anti-clockwise direction, while it is taken as negative if current due to cell flows in the clockwise direction। ठीक है। हुण असी इत्थे एक सर्किट यही वाले नूं देख लैंदे आ। सपोज इत्थे मैं इहदा पहले नाम भी लिख लैंदे आ, A B C एंड D। सपोज असी पहले सर्किट कंसिडर करते हैं A B C A, ठीक। इन्ना सर्किट पूरा नहीं मैं कंसिडर किया, असी कितना कंसिडर कर रहे हैं A B C A,
ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੀ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ A B C A, ਦਿਸ ਇਜ਼ A B C A। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ EMF, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ EMFs। ਤਾਂ EMF ਪਹਿਲੇ A B C A। E1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, E1 ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ E1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ E2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ E2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ EMF ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, क्योंकि फ्रॉम करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, इस तरह जाएगा। तो दिस इज़ वॉट क्लॉकवाइज डायरैक्शन। देखो इत्थे असी इदां क्यों लगाया सी, क्योंकि असी पूरा ये सारा सर्किट कंसिडर कर रहे सी, ठीक है। असी उपर वाली डायरैक्शन च नहीं जा रहे सी। सैल जिहड़ा इधर नूं दे रहा सी करंट, इन्हें भी इस डायरैक्शन नूं दिता सी और टोटल करंट नीचे गया सी। हुण असी इनू अगर हटा दिंदे आ और ये वाला सैल अगर एक्टिव है तो ये उपर वाली डायरैक्शन च इस तरह करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नैगेटिव करंट फ्लो करेगा। तो ये अगे असी की लगा देंगे, एलजैब्रिक सम ही है, पर E2 दे अगे की आएगा, माइनस। कादे बराबर होएगा, हुण असी कादा प्रोडक्ट लेना है, करंट ते रजिस्टेंस, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करना है। पहले किहड़ी रजिस्टेंस है, R1, करंट किहड़ा है, I1 करंट किहड़ी डायरैक्शन च है, इस तरह जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगे तो प्लस ही आएगा, I1 R1। हुण असी गल करते हैं I2 करंट, देख लेने I2 करंट किस डायरैक्शन च है, इस तरह जा रहा है, दिस इज़ वॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। तो ये भी की हो जाएगा, पॉजिटिव। हुण I3 की गल करते हैं, I3 देखो ज़रा, इस डायरैक्शन च एरो है, तो ये एरो इस तरह जा रहा है, तो किहड़ी डायरैक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये अगे की आ जाएगा, माइनस। तो ये हो गया साडे कोल अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, जो असी की करते हैं अगर टोटल EMF फाइंड आउट करनी है सर्किट च, या फिर असी कहिए करंट देखना है, या असी की देखना है, रेजिस्टेंस देखनी है। इस तरह हुण अगर असी सैकेंड सर्किट कंसिडर करते हैं, क्लोज्ड सर्किट ACDA। इन क्लोज्ड सर्किट ACDA। हुण देखो इस सर्किट च सिर्फ इक्को EMF है, ये वाली EMF, उपर वाली तो उपर वाले सर्किट च रह गई। हुण ये सर्किट च किस तरह करंट फ्लो करा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, दैन इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। इक्वल्स टू, हुण होर तां EMF है नहीं, तो कल्ला E2 ही आएगा, इक्वल्स टू। हुण साडे कोल देखो I4 करंट इज़ इन वॉट डायरैक्शन, इन दिस डायरैक्शन, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो I4 इज़ टेकन एज पॉजिटिव, R4। इस तरह I5 इज़ ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन, तो की होएगा, पॉजिटिव, ठीक है। हुण R3 इज़ ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। एरो नूं देख के ही असी देखना है किस तरह जाएगा, तो असी की कह दिता, प्लस आ जाएगा, तो ये च सारे ऐड होंगे। तो इस तरह से किरचॉफ लॉ जो है अप्लाई करांगे।